Okay, all right. Okay. Yes, attendance सर्वांची इथं रिपोर्ट करा तुम्ही. Akash sir, I'm Santosh Takle. Is it properly audible to your end? Yes, yes, audible. So this new girl Neetu, she understands Hindi, no Marathi, something sort of that. So better your Okay. explanation now moves in English, Hindi, bit of Mm-hmm. Marathi. Is it okay? All right, all right. Okay. ठीक. Okay. Okay, so guys, as usual, we will keep the combination, okay, of both the languages. Okay. So here we go. Today we are going to start new lesson because in the last lecture we completed lesson number 4, and now we will start uh, new lesson today. Okay. So it is first lesson, that is the mass media and history. So one by one we are going to see everything in that. What is mass media? Okay, and what are its historical aspects of that? Okay, we will see this. Okay, from the ancient times. Okay, so is the screen visible to everyone? Okay, Dheeraj, Maitreya, yes, Neetu. Who else is there? Yash, right. Okay, so Neetu, you don't understand the Marathi or a little bit, you know. Yes, Neetu. Okay, 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 sure. So we will keep a combination of both. Okay. So see, guys, this lesson number 5 is basically divided into 5 parts. 5.1, 2, 3, 4, and 5.5 is the last. So basically, the last part of every lesson is somewhat, what we can say, it is similar in every lesson. Okay. So basically, the last part of every lesson is about the professional opportunities in that particular area. All right. So here we are going to see mass media and history. So in the 5.5, that is the lesson, sorry, the okay, last part of the lesson, it will having the information about the proportional opportunities available in the mass media. ओके, तर या मास मीडियामध्ये प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी म्हणजे जेव्हा तुम्ही शिकून पुढे जाल, वेन यू विल ट्राय टू फाइंड जॉब्स. ओके, सो what will be the professional opportunity in this field? So the first part is the introduction to mass media. Second one is the history of mass media. Third is why do we need mass media? आता मास म्हणजे काय आपण ते बघूयात. ओके, पण त्या अगोदर जस्ट पार्ट बघूयात. फर्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड थ्रू मास मीडिया. म्हणजे हे जे काही मास मीडिया आपण बघतोय तर त्यामधून जर इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, देन दिस इन्फॉर्मेशन should be critically understood. All right, and after that only we have to bill you on that particular information. Okay, sorry. See, at the starting itself, there is one thought for you guys. Think on that. Think about it. What could be the method of sending a news to Delhi if there were famine in Bihar in Mughal period? म्हणजे जेव्हा भारतामध्ये मुघल शासन होतं, वेन देर वॉज अ मुघल पिरियड इन इंडिया, मुघल सल्तनत इन इंडिया, इफ इन बिहार देर इज अ फॅमिन. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी दुष्काळ पडलेला आहे, अकाल पडा आहे उधर. ओके, and we know that Mughal emperors were living in the Delhi. So how from Bihar to Delhi the message of this famine used to go? You can imagine. Okay,
You can just think on that. How much time would it take for the aid to reach Bihar after the Badshah heard the news? Okay, if Badshah heard that news, okay, that message that in Bihar there's a famine, then we know that there should be a help to people, aid to people. Okay, so how much time it would be have taken, okay, for that particular administration of that particular Badshah, okay, to reach to the people. म्हणजेच बादशाहची जी मदत आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचायला मग यामुळे किती टाइम लागत असेल. आता काय होतं एखाद्या ठिकाणी जर अतिवृष्टी झाली, इफ इन महाराष्ट्र फॉर एक्झाम्पल, टेक द एक्झाम्पल ऑफ महाराष्ट्र, okay, if there is a heavy rainfall at some place and because of that there is a loss of farmers, at an instant government knows, okay, because of this all technology, that yes, at that particular place there is a heavy rainfall and because of that there is a very heavy loss. So government can instantly give aid, instantly give help to the people. But this was not the case when such a technology was not existence. Okay, so that's why they're asking you to think that in the Mughal period. All right. ओके नीतू, तो हम क्या करेंगे अब हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके लेंगे. ऑल राइट, इज इट क्लियर टू यू? ओके 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 ओके, आप इस पर विचार कीजिए, थिंक ऑन दैट. उसके बाद हम अभी चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, ओ एंड so five introduction to mass media. Okay, so let's start with the definition of mass media. See, mass media contains two words. आप यहाँ पर देखिए, इसमें दो वर्ड्स है. वन है, पहला है मास. मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल. ओके, मास का मतलब यहाँ पर क्या है? मास का मतलब यहाँ पर वेट नहीं है. ओके, मास का मतलब यहाँ पर है एग्रीगेशन ऑफ पीपल, मतलब लोग जो इकट्ठा होते हैं. ओके, उसे कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ पीपल. तो मास मतलब भीड़, वी कैन से, और सोसाइटी और पीपल. एंड मीडिया मीन्स various modes of communication. Okay, various modes of communication. Media means it can say as a medium. Okay, it is related to medium. जब भी हम बात करते हैं कि आप कौन से स्कूल में था पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं हम मराठी में पढ़ते हैं, राइट. तो बेसिकली इंग्लिश और मराठी ये दो क्या है? ये मोड से. ओके, ये दो वेज है टू लर्न. ओके, टू हाउ education in schools. So likewise various modes of communication. ये communication के modes है. Okay, types है, ways है. Thus mass media is a field of mass communication. मतलब अगर पूरे देश को, पूरी भीड़ को, पूरे एग्रीगेशन ऑफ पीपल को आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ चीज बताना है, कुछ मैसेज देना है, मैसेज पहुंचाना है, तो वो जिस मीडिया से किया जाएगा उसे कहते हैं मास मीडिया. मास मतलब पब्लिक. ओके, फॉर एग्जांपल मास मीन्स पब्लिक, जनता. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. यू डू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास मीडिया एक्चुअली? अभी समझ आया? ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, धीरज, नीतू एंड ओके, आई होप इट will hear it. We can easily say to media communication. मतलब क्या है इसका?
Thus, mass media is a field of mass communication. Okay, and we can easily send some information. मतलब हम easily किसी information को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं थ्रू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम जो संपर्क कहते हैं उसके डिफरेंट जो मोड से उसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के साथ किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। इन दी ओल्डन डेज, म्हणजेच पूर्वीच्या काळी, इन ओल्ड डेज, a crier would run in a street beating drums and carry important news according to orders of a king. हमें पता है कि क्या, कि पुराने जमाने में क्या होता था, वहां पर राजे रहते थे, वहां पर बादशाह रहते, राइट। तो अगर कोई मैसेज उनको किसी गांव को देना है, किसी सिटी को, शहर को देना है, तो वो क्या करते थे, देर यूज टू बी अ कैरियर। मतलब एक आदमी रहता था, ओके, और वो आदमी क्या करता था, स्ट्रीट पे जाता था किसी गांव के, ओके, और वहां पर वो ड्रम्स बीट करता था, ड्रम बजाता था, ओके। उसकी वजह से क्या होता था, लोग आसपास इकट्ठा होते थे, और जब लोग ये इकट्ठा होंगे तो क्या होता था उस वक्त, वो जो न्यूज है, बादशाह की इंफॉर्मेशन है, कुछ ऑर्डर्स होंगे, वो लोगों को बताता, ओके। एंड क्राइंग आउट important news according to orders of the king. The news would spread among people by word of mouth. अभी गांव में 100 लोग हैं, ओके, 15 लोगों ने अगर ये सुना कि वो क्रायर जो रहता था, कि जो बताता लोगों को, तो हुआ, म्हणजे बताकर जो मैसेज है किंग का सारे गांव को दिया करते थे, ओके। तो दिस वाज द सो मास में मास मीडिया क्या है, टीवी है, इंटरनेट है, न्यूज चैनल जो चलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ नेटवर्किंग साइट्स है, ये है मास मीडिया। क्योंकि अगर एक मैसेज अगर हम किसी ग्रुप में छोड़ेंगे तो वो सारे लोगों को पहुंच जाएगा, टेलीग्राम हो गया, ओके। तो वो कौन कौन से है मास मीडियम्स, वो हम, लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया है, राजा महाराजा जो थे, वो किसी क्रायर के जरिए हमें वो इंफॉर्मेशन बता देते थे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, पुराने जमाने में और क्या क्या होता था, उसके बाद क्या क्या हुआ, और अब क्या हो रहा है, वो हम हिस्ट्री यहाँ पर हम everybody about this. Yeah. Why is guys? Prior means है, मतलब वो कर बहुत बड़े आवाज में क्या करता था, आकर अपना जो आदेश है राजा का वो बता देता था, इसलिए वो उसे क्रायर कहते हैं। एक तरह से वो रोता था, ओके। रोना मतलब नॉट लिटरल मीनिंग, ओके, शब्दशः अर्थ नहीं लेना इसका। ओके, आता पण आवाज ब्रेक होतोय का, हॅलो? Okay, yes, it is clear for you, na? Okay. So which part should I should explain once again, guys? Or did you understand about this definition of mass media? Is it clear to everyone? ये मास मीडिया की डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, ये सबको समझ में आया या मुझे दोबारा बताना पड़ेगा? ओके, ओके, श्योर। सो बेसिकली मास मीडिया क्या है गाइज? मास मीडिया बेसिकली, मास का मतलब होता है पब्लिक, और मीडिया का मतलब होता है मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मास मीडिया मतलब पब्लिक को अगर कोई मैसेज देना है, ओके, तो उसके लिए जो मीडियम यूज करेंगे हम, जो मोड्स यूज करेंगे अलग अलग, तो है मास मीडिया। बेसिकली इट इज अ मीडियम ऑफ communication so that we can send a message to public
not a single individual. All right. सो उसी बारे में एक एग्जांपल दिया गया है कि पुराने जमाने में क्या होता था. इन ओल्डन डेज व्हाट यूज्ड टू डू, देयर वाज अ क्रायर. म्हणजेच किसी राजा, म्हणजे अगर कोई राजा होता होगा, उसका राज्य में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचानी पड़ती थी, तो वो एक आदमी रहता था. वो आदमी काय करतात, त्याला मराठीमध्ये दौंडी पिटवणं असं म्हटलं जायचं. ओके, दौंडी देणं. तर त्याला क्रायर असं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं. बेसिकली तो काय करायचा, ही यूज टू गो इन द विलेज एंड एट दैट प्लेस ही यूज टू बीट द ड्रम. वो ड्रम बजाता था. जे उसकी वजह से क्या होता था, लोग इकट्ठा होते थे और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है राजा का, जो कुछ ऑर्डर है महाराजा के, वो उस लोगों को बता देता था. ओके, सो ये लो राजा का मैसेज लोगों को देने के लिए ये सिस्टम हुआ करता था पुराने जमाने में. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीट इन द फर्स्ट पार्ट. सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके ओके. अभी हम क्या देखेंगे, नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ दिस मास मीडिया. मतलब अलग अलग जमाने में कौन कौन से सिस्टम्स मास मीडिया कौन कौन से थे. ओके, एंशियंट टाइम्स में कौन से थे, उसके बाद मिडिवल टाइम्स, उसके बाद जो मॉडर्न अभी का टाइम है, तो उसमें मास मीडिया कौन कौन से है वो हम सब देखेंगे. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. ओके, जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है और न्यूज़पेपर बनाना और उसको बांटना, ये जो प्रोसेस है वो उन्होंने इंडिया में लाया. ओके, सो दे इंट्रोड्यूस दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर इन इंडिया व्हेन दे ऑक्युपाइड इंडिया. जब उन्होंने हमें इंडिया पे कब्जा कर लिया, तब उन्होंने अपने यहाँ से एक टेक्नोलॉजी लाई, वो न्यूज़पेपर की और प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी. और पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स. उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर्स वेर बीइंग प्रिंटेड, and when that printed newspaper we are distributed in the public used to read that. All right, newspapers become the first mass medium of circulating information and knowledge among people. So at that time when Britishers come India with the technology of printing and newspaper, and that newspaper were distributed in the public, then newspaper become the first mass medium of circulating information and knowledge. इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए, लोगों में बांटने के लिए, और उसके बाद जो नॉलेज है, जो ज्ञान होता था किसी बात का, वो लोगों को बताने के लिए न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडिया, mass medium, all right, among the people. Okay, that's why we are going to see about the newspapers, because newspaper was the first mass medium for the people after the Britishers come in India. Okay, so we will see now the newspaper is one type of medium, mass medium, because you know that if you can distribute the newspaper in thousand of people, and thousand of people means it is a public, okay, with large population, and yeah, medium is the newspaper. So you can distribute the newspaper, you can tell the information through newspaper to thousands of people, millions of people, lakhs of people, even crores of people. So see this newspapers. Newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining और other supplementary content. So यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है न्यूज़पेपर का. व्हाट इज न्यूज़पेपर एक्चुअली? सो न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन, मतलब वो पब्लिक को हम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसको मराठी में और हिंदी में प्रकाशित करते कहते हैं. ओके, एंड उसमें क्या होता है, विच मेनली प्रिंट्स न्यूज. तो वो क्या प्रिंट करते हैं, वो क्या छपाई करते हैं उसमें, बेसिकली उसमें न्यूज होते हैं. एडिटोरियल्स मतलब क्या, एडिटोरियल्स मतलब वहां पर करंट इश्यू के बारे में या किसी इश्यू के बारे में
नॉलेज दिया होगा, इंफॉर्मेशन दी होगी, व्यू पॉइंट दिया होगा, पीपल्स ओपिनियन उसमें लिखे जाते हैं, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट भी उसमें दिया जाता है। लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके इसके लिए भी कुछ न्यूज उसमें दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट ए डेफिनेट टाइम। ओके, संभवतः बहुत ज्यादातर ठिकानों पे न्यूज़पेपर सुबह सुबह ही दिया जाता है। वैसे न्यूज़पेपर दोपहर की भी होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर शाम को भी दिए जाते हैं। ओके, तो उस प्रकार के न्यूज़पेपर सभी स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवर किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों में। सो न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। तो ये न्यूज में जो न्यूज प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें न्यूज कौन कौन से होते हैं? लोकल न्यूज, मतलब आपके गांव के बारे में, आपके गांव के आसपास जो गांव होंगे, अगर उसमें कुछ घटना घटी होगी, कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, ओके, वो उसमें होगा। किसी सिटी के बारे में होगा। ओके, कभी कभी नेशनल न्यूज होती है, नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय लेवल पे न्यूज होते हैं उसको लिखा जाता है और छापा जाता है उसमें। इंटरनेशनल न्यूज भी होते हैं, दूसरे देशों के, दूसरे कंट्रीज के न्यूज उसमें होते हैं। ओके, न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। बेसिकली न्यूज़पेपर में क्या होता है, कल क्या हुआ, ओके, बेसिकली क्या चल रहा है कंट्री में, देश में, आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके रीजन में, आपके स्टेट में, तो ये करंट होते हैं। और अगर ये न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर आपने कुछ कहा, किसी जगह पे आपने प्रिजर्व करके रखा, संभल कर रखा, और 50 साल के बाद अगर आप वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि 50 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था। सो बेसिकली इट इज व्हाट इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर इसको आप पढ़ेंगे कुछ सालों बाद तो आपको उस दिन की हिस्ट्री पता चलेगी जिस दिन वो प्रिंट हुआ था। ओके, और वो क्या करता है, करंट इवेंट जो होते हैं उस टाइम के, उसको रिकॉर्ड किया करता है न्यूज़पेपर। ओके, सो दिस इज द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ मास मीडियम। Okay, so guys, did you understand this newspaper? Everybody, it is not a very difficult topic, right? Because I think you students might have read newspapers. Okay, आप भी ये न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मराठी में, कुछ अंग्रेजी में है, कुछ हिंदी में आते हैं, रीजनल के। ओके, सो आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अभी हमने ये तो देखा कि न्यूज़पेपर ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये छपता है उसमें, इसके बारे में होता है, उसके बारे में होता है, करंट इवेंट के बारे में होता है। अभी हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि न्यूज़पेपर एक्चुअली कब शुरू हुए दुनिया में, इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे, किसके राज्य में शुरू हुए और किस जगह शुरू हुए, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हम हिस्ट्री देखने वाले हैं ना, नाम का चैप्टर, सॉरी, चैप्टर का नाम ही क्या है, मास मीडिया एंड हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। नाउ सी, प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूजपेपर। प्रिकर्सर्स ऑफ न्यूजपेपर म्हणजेच काय, ऍक्च्युअली न्यूजपेपर सुरू होने अगोदर काही छोट्या छोट्या गोष्टी केल्या जायच्या। ओके, मतलब न्यूज़पेपर जब से छपाई शुरू हो गई, उससे पहले इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ अलग अलग चीजें की जाती थी। तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। प्रीकर्सर्स मतलब प्री, प्री मीन्स न्यूज़पेपर के पहले का, उसके बाद न्यूज़पेपर आए। तो हम देखेंगे क्या है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन इरा, देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग inscriptions with royal decrees at public place. रॉयल डिक्रीज मीन्स जो शाही सिक्का दिया होता है, वो जो स्टैम्प होता है, ओके, उससे कहते हैं रॉयल डिक्रीज किंवा मोहरा आपण म्हणूयात। राज्य, जो राज्य था, उसका जो रॉयल वी कैन से, ओके, तो उसका जो डिक्रीज था, उसका जो स्टैम्प था, तो वो दिया जाता था इजिप्ट में बिफोर द बिगिन ऑफ कॉमन ईरा। अभी कॉमन ईरा कब शुरू हुआ गाइस? कॉमन एरा का मतलब है
0 1 2 3 4 5 6 7 100 200 400 1800 1900 1999 2000 2001 to 3 likewise this. So जो यीशु ख्रिस्त थे उनके जन्म से हम क्या कहते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो आज तक का जो कीरा है उसे हम कॉमन इरा कहते हैं। मतलब पहली सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी का पीरियड जो है उसको कॉमन इरा, उसके बाद का पीरियड हमें कॉमन इरा कहते हैं। तो जब ये कॉमन इरा का पीरियड चल रहा था, मतलब 2000 साल के आसपास पीछे, उसके पीछे वहां पर इजिप्ट जो कंट्री है, वहां पर इजिप्ट में, उस कंट्री में और उस राज्य में एक प्रथा थी, वहां पर एक कस्टम, वहां पर देर वॉज अ ट्रेडिशन दैट प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो कुछ लिखा गया है उसमें क्या होता था, रॉयल स्टैंप होता था, क्योंकि वो ऑथेंटिक तो होना चाहिए ना, ऑथराइज्ड। सो द ऑथोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रूरल वॉज देयर, किंग वॉज देयर, and it was kept at public place. So it was kept at public place, and when people gets gathered around that public place, they used to read it, and from that they used to get the information of king. Okay, now Emperor Ashoka also resorted to similar method to reach out to his subject. मतलब उसी के तरह हमारा जो सम्राट अशोक था, एम्परर अशोक, ओके, तो उनके राज्य में भी इसी प्रकार की कुछ प्रथा हमारे इंडिया में भी थी। मतलब राजा का जो आदेश है, राजा की जो विषय है कि लोगों को बताना है, तो वो बताने के लिए वो भी क्या करते थे, कुछ इंस्क्रिप्शन टाइप का कुछ लिखते थे, और वो उनके डिक्री के साथ वहां पर पब्लिक प्लेस पर रख दिया करते थे, प्लेस किया करते थे। इन द रोमन एम्पायर, रॉयल डिक्रीज वेयर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। अभी देखिए, हमने इजिप्ट का देखा, इंडिया का देखा, एम्पर अशोक का, फिर रोमन एम्पायर था, उसमें भी क्या किया जाता था, सेम रॉयल डिक्रीज वेयर रिटन ऑन द पेपर, और पेपर पे लिखे जाते थे। दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रीजन, एंड उसके बाद उसके बहुत ज्यादा कॉपियां बनाकर रीजन में बंटवा देते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। ओके, उसकी वजह से क्या होता था, कि राजा जो कहना चाहता है, जो आदेश देना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, पब्लिक को पता चल सके। ओके, सो गाइस, am I audible to everyone? सबको समझ आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? यस, नया जो नया मेंबर आए उसको समझ आ रहा है कुछ प्रॉब्लम? हेलो नीतू राजपुरोहित। ओके, यश, मैत्रेया, धीरज, नो प्रॉब्लम्स। ओके, नीतू राजपुरोहित, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप जैसे डाउट्स पूछ रहे बाकी के बच्चे, ओके, उनको पता है क्या करना है, आप यहाँ पर लिखकर दे सकते हैं, सो दैट आई कैन रीड इट एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स। तो देखिए, रोमन एम्पायर में भी वही हुआ था। सो उसी रोमन एम्पायर में क्या होता था, और दे ऑल्सो कंटेन्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। मतलब जो रोमन एम्पायर में रॉयल डिक्रीज रिटर्न करते थे पेपर पे और डिस्ट्रीब्यूट दिया करते थे, उसमें क्या क्या होता था, उसमें होता था इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स। मतलब नेशन में, उस देश में, रोमन एम्पायर में जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ घटनाएं हो रही है, उसके बाद उसके कैपिटल में जो कुछ घटनाएं हो रही है उसका जिक्र होता था वहां पर, कि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है अपने देश में, अपने कैपिटल। ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स reign, newspaper known as Acta Diurna, meaning acts of every day, used to be placed at public places in Rome. So, in the Roman Empire, there was an emperor called Julius Caesar, right? I think you might have heard about this name. Julius Caesar was
one of the Roman empire. Okay, you can say emperor, and in his reign, matlab in his ruling, in his time, there was a newspaper known as Acta Durena. So Acta Durena नाम का एक न्यूज़पेपर छपता था. तो उस एक्टर ड्यूरेना का मतलब क्या होता है? एक्ट्स ऑफ एवरीडे, मतलब डेली का जो घटनाएं हुई है उसके बारे में. और वो जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता था, रखा जाता था? एट पब्लिक प्लेस इन द रोम. रोम की जो सिटी थी वहां पर पब्लिक प्लेस होती थी जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, वहीं पर वो रखा जाता था. उसकी वजह से लोगों को पता चलता था कि सिटी में क्या हुआ, कैपिटल में क्या हुआ, देश में क्या हुआ. इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल. और वो बहुत अच्छा एक जरिया था जिसके जरिए से और जिसकी मदद से कोई राजा या महाराजा होता है वो अपना आदेश है जो वो जनता तक पहुंचा सके, वो प्रजा तक पहुंचा सके, वो लोगों तक पहुंचा सके. इन सेवंथ सेंचुरी सीई, मतलब कॉमन era, रॉयल डिक्टेट्स were distributed among people at public places. मतलब जो राजा के आदेश होते थे, डिक्टेट्स, वो भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे एट पब्लिक प्लेसेस. जब लोग पब्लिक प्लेसेस में इकट्ठा होंगे, एट दैट टाइम दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द पब्लिक. ये कब होता था? 7वीं शताब्दी में. ओके, ये होता था 7वीं शताब्दी में. गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें क्या होता था? द इंफॉर्मेशन ऑफ द वॉर एंड information of important events. Travelers arriving from far away would add spice to stories from these places and narrate it to local people. मतलब वहां पर किसी रोम में अगर इंडिया से कोई आदमी गया, ट्रैवलर गया, ओके, वो ट्रैवल क्या करता था? ही यूज्ड टू ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेस. ओके, तो वो इंडिया से गया तो क्या करेगा? वो इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर उनके उन लोकल लोगों को पता है कि हमारा देश में ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा. ओके, सो नरेटिव टू लोकल पीपल, वहां के लोकल पीपल को बताएगा कि हमारे देश में क्या क्या है. द एम्बेसडर्स ऑफ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट. अभी देखिए, अगर कहा कहीं पर मेरा राज्य है और मेरे पास में दूसरा राज्य है, तो मैं क्या करता था? मेरा एक जो राजदूत है मेरे देश का और मेरे राज्य का, वो उस दूसरे राज्य में भेजता था. जिसका मतलब जिसका मेन इम्पोर्टेंट पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या था? कि उस राज्य की इंफॉर्मेशन, उस राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे राज्य में पता चल सके. तो उसे कहते हैं एम्बेसडर. वो जो आदमी उस दूसरे राज्य में रहता था वो न्यूज कलेक्ट करता था और वो न्यूज रॉयल कोर्ट जो है, राजा का जो दरबार है, उसमें वो जाकर बताता. ओके, सो दिस इज द प्रीकर्सर्स ऑफ द न्यूज़पेपर. मतलब न्यूज़पेपर शुरू कैसे हुआ, उससे पहले क्या था, प्री में. ओके, तो ये सब है उसके बारे में. ओके, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत. दूत जो होता है हमारे राज्य का दूत. ओके, धीरज, डू यू अंडरस्टैंड एम्बेसडर? अभी देखिए, हमारे देश के कुछ जो सिविल सर्वेंट है, जो फॉरेन ऑफिसर्स है, वो क्या होते हैं? फॉरेन कंट्री में रहते हैं. मतलब ये हमारा राज्य है और हमारे राज्य का एक आदमी जो फॉरेन ऑफिसर होता है, वो अगर चाइना में हम रखते हैं. चाइना में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां की कुछ इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए, तो इंफॉर्मेशन वो हमें बता सकते हैं. ओके,
So basically you can see that newspaper we are started basically from here, you can see, right? Not exact that date is given, but you can, from this information you can easily see here. During the Julius Caesar's reign, newspaper known as Acta Diurna, जो Julius Caesar था, who was the king of the Roman Empire, so he used to print a newspaper known as Acta Diurna. So you can easily see when Julius Caesar was a emperor or a king. From that time you can take the guess, okay, not the perfect answer. All right. Okay, Neetu, is it clear now? Okay, right. See here, Bengal Gazette. So what it is, we will see. The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780. You can see now here, Bengal Gazette is the name of the newspaper, just like the Indian Express, Economic Times, Washington Post, The Hindu, okay, India Today. So these are the newspapers. So likewise that, the first newspaper, the English newspaper that was printed in India was the Bengal Gazette. And when it was printed on? It was printed on 29th January 1780. मतलब यू कैन सी कितने जब अंग्रेजों का शासन बंगाल पे हुआ करता था, ओके, अंग्रेजों ने भारत पे जो शासन है वो ही शुरू कहां से किया, वो बंगाल से किया था। इसलिए उस वहां पर उन्होंने जो न्यूज़पेपर शुरू किया पहला अंग्रेजी, उसका भी नाम उन्होंने बंगाल गैजेट रख दिया। ओके, हम जो कहते हैं ना अंग्रेजों ने शुरुआत कहां से की इंडिया में राज्य करने की, तो वो है बंगाल। बंगाल मतलब हमारा जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है और जो बांग्लादेश है अभी का, वो सब पार्ट उसमें आता है। ओके, सो 29 जनवरी 1780, 1780 में इट वाज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट। बघा याचे दोन नाव आहेत, ओके, इसके दो नाम है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब वो कुछ जाहिरात आपण म्हणतो, ओके, वी कॉल इट जाहिरात, विज्ञापन। तो उसमें कुछ विज्ञापन होते थे और न्यूज बताए जाते थे। तो कलकत्ता क्यों? क्योंकि बंगाल की हमारा कलकत्ता जो है आज का, वो वहां उस वक्त भी वहां पर था, सो इसलिए उसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट ऐसे दोनों नाम से पहचाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, एन आयरिश जेंटलमैन। तो वो शुरू किसने किया इन ब्रिटिश रूल? सो इट वॉज started by James Augustus Hickey. You can see the picture of him here. उसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉन जेम्स ऑगस्टस हिकी की। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल गैजेट। सो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिलेशन मतलब कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट किसने शुरू किया। So it was started by James Augustus Hickey, and he was a Irish people. Irish matlab he is from Ireland. So guys, did you understand how Bengal Gazette was started in India? Who started it? What was the alternate name for it? What is the date? Okay, so I hope everybody understand this topic. What is Bengal Gazette? Because we are studying about the newspapers, right? So in the newspapers we have seen what is newspaper. After that, precursors of the newspaper. Then we are going to see the examples of newspapers in India. So in that we have seen very first English newspaper in India, Bengal Gazette. Now we will see the next newspaper in India. The next newspaper is दर्पण. दर्पण हा एक मराठी शब्द आहे, ओके, दर्पण हे मराठी वर्ड है. The newspaper
दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। ओके, 1932 में मुंबई में दर्पण नाम का जो न्यूज़पेपर है वो वहां से छपना शुरू हो गया। बाळ शास्त्री जांभेकर वॉज एडिटर ऑफ दर्पण। एडिटर का मतलब क्या है? संपादक। वो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कि क्या क्या न्यूज़पेपर में डालना है, क्या कैसे करना है, कि कोई इंफॉर्मेशन डालना है, वो सब देखता है। ओके, तो 1832 में दर्पण नाम का न्यूज़पेपर है वो मुंबई में शुरू कर दिया गया। एंड वो किसने शुरू किया? बाळ शास्त्री जांभेकर। उन्होंने जो उसके एडिटर थे उन्होंने ये शुरू किया। यहाँ पर आपको एक टास्क दिया गया है, मेक अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बनाइए। किसकी लिस्ट? लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय दे। मतलब आपको क्या देखना है और स्टडी करना है, कलेक्शन करना है। तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब हमें स्वतंत्र नहीं मिला था तो उस वक्त इंडिया में कौन से आदमी थे जिन्होंने न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा शुरू किए थे इंडिया में। तो उनका मोटो क्या था कि भारत की आजादी के लिए काम करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों में पेट्रियटिज्म मतलब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ाना। सो दर्पण का हमने देखा 1832 में शुरू हुआ मुंबई में, और शुरू किया बाल शास्त्री जांभेकर इन्होंने। तो बाल शास्त्री जांभेकर का यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। द न्यूज प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड to know about the political, economic, social and cultural events of those times। देखिए, अभी ये 1832 में शुरू हुआ, तो 1832 33 34 कितने साल चला हमें पता नहीं, बट बहुत साल पता चला। तो हर दिन क्या होगा, ये न्यूज़पेपर जब छपेगा तो उसमें उस दिन की करंट इंफॉर्मेशन वहां पर होगी, और वो करंट इंफॉर्मेशन हम अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल, ओके। तो उस न्यूज़पेपर में क्या होता था दर्पण में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड नेशनल इवेंट्स उसमें होते थे। क्या नया पॉलिटिकल इवेंट हुआ, क्या नया सोशल इवेंट वहां पर हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने उस न्यूज़पेपर में दर्पण में छपा हुआ रहता था। हियर आर अ फ्यू न्यूज टाइटल्स एज एग्जांपल्स। अब देखिए वो न्यूज़पेपर में क्या होता था, कोई भी न्यूज़पेपर आप देखेंगे उसमें हेडिंग्स होती है, टाइटल्स होते हैं, तो हम उस वहां पर अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं क्या न्यूज है। तो जब दर्पण चल रहा था तो दर्पण में भी छपता था, तो उसके टाइटल्स क्या होते थे ये हम अभी देखेंगे। तो पहला एग्जांपल दिया उन्होंने, जब द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये न्यूज का नाम है, वहां पर हमें पता है पहले पेज में बहुत ज्यादा न्यूज होती है, और दूसरे पेजेस भी होते हैं, सारे पेजेस पे कहीं भी कोरा कागज आप पेपर में कभी नहीं दिखेगा। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम, ये न्यूज का हेडिंग है। द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन नेशन, ये अनदर हेडिंग है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, ये भी उतना, ओके। द डेंजर ऑफ रशियन अटैक, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिटी फॉर cleanliness of the city, remarriage of Hindu widows, the inception of theatres at Kolkata, achievements of Raja Ram Mohan Roy in England। तो ये सब हेडिंग है, और उस हेडिंग के बाद उसमें इंफॉर्मेशन उस बात की दी जाती थी। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रोज लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द टाइम। अगर ये जो न्यूज़पेपर है वहां पर जतन करके रखे है, वहां पर प्रिजर्व करके रखे, संभल कर रखे। अगर आपने चाहा, आप वहां पर गए किसी आर्काइव में और पूछा कि हमें इस साल का न्यूज़पेपर चाहिए, अगर आप वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, आपको पता चलेगा कि उस दिन उस वक्त इंडिया में चल क्या रहा था एक्चुअली। ओके, एक्चुअली वहां पर क्या चल रहा था उस वक्त के करंट इवेंट्स क्या थे।
Okay, so guys, very first we have seen about the Bengal Gazette newspaper, which is a Hindi, sorry, English newspaper. Then we studied about the Darpan, what was different things in the Darpan, how Darpan used to tell about the political, economic, and social events that were happening at that time. So, did you understand this? Are you getting the points that I am trying to explain? ओके, किसी का कुछ डाउट है इसमें? Okay. Yes, Nitu, is there any problem, any doubt with this newspaper? What? ये सब न्यूज़पेपर के नाम है। बंगाल गैजेट ये न्यूज़पेपर का नाम है। दर्पण भी न्यूज़पेपर का नाम है। आप कहाँ से है नीतू जी? नीतू राजपूत, प्रॉपर कहाँ से आप? ओके, तो राजस्थान। अभी अगर हम मराठी के बारे में बताएंगे ना आपको, तो मराठी में अलग अलग न्यूज़पेपर है। लोकमत है, मतलब जनता का उसमें मत आता है। लोकसत्ता है, और उसके बाद मटा है, मराठी टाइम्स है, महाराष्ट्र टाइम्स। उसके बाद पुढ़ारी है, पुण्यनगरी है, सार्वमत है। ये पेपर के नाम होते हैं। जिस प्रकार नेशनल लेवल पे हिंदू, द हिंदू नाम करके एक न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर होते हैं। ओके, सो ये सब हमने अभी देखा ना। बंगाल गैजेट, दर्पण, ये न्यूज़पेपर के नाम है उस वक्त के। अभी अगला न्यूज़पेपर का नाम हम देखेंगे, जो इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिया का जो फ्रीडम मिला इंडिया को, उससे पहले था। तो उसका नाम है प्रभाकर। अभी प्रभाकर नाम का न्यूज़पेपर है, और ये नाम उसके पेपर पे छपता था, प्रभाकर का। नाउ सी, so this Prabhakar newspaper was started by Bhau Mahajan. So Bhau Mahajan was a person, and he started this newspaper called Prabhakar. The history of French Revolution and Shatapatre, okay, the letters of Lok Hitwadi aimed at creating social awareness were published in this newspaper. अभी देखिए, हमें पता है कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन होगा हुआ, ओके, कुछ 1800, सॉरी 1700 66 या 77 में हुआ था शायद, आई एम नॉट श्योर। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो इंफॉर्मेशन है, तो वो रिवॉल्यूशन इसमें छपता था कि उससे क्या हुआ वहां पर। शतपत्र करके, पत्र मतलब लेटर, शतपत्र करके एक लेटर थे। वो लेटर्स किसके द्वारा लिखे गए थे? लोकहितवादी। अभी लोकहितवादी ये क्या है? एक पदवी दी गई है, जिस प्रकार सर पदवी होती है, मिस्टर पदवी होती है, कोई उसी प्रकार लोकहितवादी ये पदवी दी गई थी गोपाल हरि देशमुख इनको। तो उनके कुछ पत्र थे, उनको शतपत्र कहा जाता था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी था। तो ये सब जो पत्र होंगे, लेटर होंगे, ये रिवॉल्यूशन के बारे में उस वक्त के प्रभाकर, ये जो न्यूज़पेपर, उसमें लिखा जाता था। जिसकी वजह से लोग अवेयर होते थे कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है जग दुनिया में, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होगा। ओके, इसके अंदाज वहां पर लगाए जाते थे। तो ये सब कुछ पब्लिश होता था, ये सब कुछ प्रकाशित होता था, छपता था प्रभाकर करके जो न्यूज़पेपर था उसमें। अब ये न्यूज़पेपर भाऊ महाजन इन्होंने शुरू किया था। ओके, तो ये प्रभाकर भी न्यूज़पेपर हमारा हो गया। मतलब ये सब न्यूज़पेपर के नाम हमने देखे, ये मास मीडिया है। ये न्यूज़पेपर हम यूज करते थे ताकि हमारे उस वक्त के जो लोग थे बड़े बड़े, वो अपने विचार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, लोगों में पहुंचा सके, स्प्रेड कर सके। क्लियर अबाउट प्रभाकर ऑल्सो? हेलो एवरीवन, एम ऑडिबल? डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग?
Having any doubt, anybody? Okay, what should I explain once again, Neetu ji? I think Neetu Rajpurojit had have some problem or any doubt. You can ask me. ओके ओके ओके। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअली क्या है ना, शायद आपने सातवीं आठवीं में कुछ पढ़ा होगा इसमें बारे में, सातवीं आठवीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता, लोगों ने जिस प्रकार हमने इंडिया का हमने स्ट्रगल करके, फ्रीडम स्ट्रगल करके हमने हमें जैसे जिस प्रकार इंडिपेंडेंट कर दिया अंग्रेजों से, उसी प्रकार फ्रेंच में हुआ था। फ्रांस जो कंट्री है उसमें भी उनके लोगों ने कुछ आंदोलन करके, स्ट्रगल करके, फ्रीडम स्ट्रगल करके उन्होंने अपने देश में एक रिवॉल्यूशन किया था, एक क्रांति लाई थी कि हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब अच्छे से रहेंगे देश में, वहां पर डेमोक्रेसी लाएंगे, इसी प्रकार का। सो वो, यस यस, प्रभाकर भी शायद मराठी न्यूज़पेपर है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड प्रभाकर। दर्पण भी मराठी न्यूज़पेपर था, प्रभाकर भी। या न्यूज बताते थे उस वक्त क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, उसमें बताते थे। ओके, मतलब पब्लिक को बताते थे, जनता उसको पढ़कर उनको नॉलेज मिलता था। यस यस। अभी देखिए, अगर देखिए अब इंडिया में अगर चाइना में कुछ हुआ, अमेरिका में कुछ हुआ, तो हम हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में लिखते हैं ना, यस अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर गए। उसके बाद हम ऐसा भी लिखते हैं कि अमेरिका में कुछ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, वहां पर बम ब्लास्ट हुआ वगैरह वगैरह। उसी प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पर जो होता था, तो उस बारे में यहाँ पर लिख जाता था। वो लिखा क्यों जाता था, क्योंकि हमारे लोग भी मोटिवेट हो सके, हमारे लोग भी इंस्पायर हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, इसके लिए वो लिखा जाता था, मोटिवेशन के लिए। और मराठी, ओके, ज्ञानोदय इज देयर, केसरी एंड मराठा इज देयर। Okay, so there are many newspapers here, but the remaining newspapers we will see in the next lecture, because it is almost 9 p.m. and we don't have much time. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही बस करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अभी भी 4-5 मिनट है हमारे पास। ओके, सो देर इज नथिंग लाइक मैत्रेय। ओके, आपके जो दिमाग है ना, वो दिमाग बहुत ज्यादा चलना चाहिए। जो उम्र है ना आपकी, आपको कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए अपने दिमाग में। ओके, वो कोई भी हो, सिली क्वेश्चंस हो, एनीथिंग एल्स, इससे क्या होता है, आपकी जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़ती है। आपको क्यूरियस होना चाहिए, कुतूहल होना चाहिए कि ऐसा ऐसा वैसा, लाइक वाज दिस। ओके, शतपत्रे मीन्स पत्र। ओके, पत्र मीन्स लेटर। ओके, जो पत्र लिखते थे ना हम पुराने जमाने में, एक दूसरे को दिया करते थे, ग्रीटिंग्स एक्सेट्रा। और शत का मतलब होता है 100। मतलब शतपत्रे नाम करके जो पत्र होते थे, वो पत्र में क्या होता था, देखिए वो किसके द्वारा लिखे जाते थे, लोकहितवादी।
लोकहितवादी मतलब एक आदमी थे, उनको एक लोकहितवादी लोग सब के बुलाते थे, गोपाल हरि देशमुख इनको। और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता निर्माण करने के लिए ये जो पत्र है ये इम्पोर्टेंट थे, लोगों को वो लिखते थे एक प्रकार की। तो वो सब उनके बारे में इस प्रभाकर न्यूज़पेपर में लिखा जाता था, पब्लिश किया जाता था। ओके, so guys, I hope it was good lecture today, and you also got to know some new information. Okay, all right. So guys, till next lecture, then good night, take care, goodbye. All right, and I hope you are able to understand whatever I'm teaching you. And thank you everybody for listening to me and being so interactive in this session. Okay, okay. So you can leave the class now.